हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम टू द एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच का लेक्चर नंबर 4। Guys, till now we have completed 3 classes in this entire series of around 48 to 50 classes, and in that, if you remember, we have on the day 1 we completed the basics of audit. Day 2 we completed two auditing standards, that is SS 700 and 701. Day number 3 we completed SS 705 and 706. Okay, today let's go ahead and complete the remaining standards, that is SS 710, and the next point is that we have to cover SS 720, along with the fact that we also have to start with our company auditor's report order. Okay, so without wasting any time, let us start now. Okay, everybody's eyes on the screen. There was some technical issue, that is why the class was not able to start, but now I think so it's resolved. Okay, before we begin with the other two standards, let's complete the balance part on your screen. I think so now it's visible. Yes. Okay. So if you remember, guys, on the day 1, yes. Okay, so if you remember on the day 1, I told you that we have to complete with these two standards. We are already done with that. Day 2 pay, we have done with 705, 706, correct? Now on day 3, मतलब अपना lecture 4 है, but this chapter का day 3, ठीक है, we are starting off currently with Caro and section 143 right now because it is an easy part, ठीक है. 710, 720 we'll be doing in the next class. 710 and 720 will close that in the next start, and that is where we will also try to cover all the questions as well.
ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर एंड सेक्शन 143। ठीक है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम स्टैंड पॉइंट। इनफैक्ट राइट नाउ इन May 2025 अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट हैड आस्क्ड कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, उसके अंदर उन्होंने क्लॉज 3 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, क्लॉज 3। ठीक है, सो देयरफॉर इन दैट केस we can clearly see that these 21 clauses are very very important for us. Okay, without wasting any time, let us start. Now if you remember the diagram that I made yesterday, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को शो किया था that कि I had exactly shown you what exactly happens, what exactly are the parts of an audit report. audit report के कितने parts होते हैं, तो उन audit reports के parts को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, pay attention very carefully. We are looking at company auditors report order 2020. ठीक है, now what do you have to study in this? ध्यान से देखना बच्चों, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। There are two parts. First we have to study the applicability. ठीक है, दूसरा पार्ट इज दैट वी हैव टू स्टडी द क्लॉजेस। ओके बच्चों, पहले क्या हमें पढ़ना है? फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द एप्लीकेबिलिटी, सेकंड वी हैव टू स्टडी द क्लॉजेस। नाउ व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेबिलिटी वाइज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कारो अप्लाइज ऑन ऑल द कंपनीज, कारो अप्लाइज ऑन ऑल कंपनीज, in fact it also includes foreign companies. ठीक है, so remember very simply, Caro applies on all companies including the foreign companies, as simple as that. Now there are certain companies that are in the negative list जिनके ऊपर Caro apply नहीं होता है। ठीक है, so except there are few companies on which the Caro does not apply. ठीक है, let me make the list of those companies out here. So there is actually दो की जोड़ी है। देयर आर टोटल 6 ऑर्गेनाइज कंपनीज जिनके ऊपर कारो अप्लाई नहीं होता है। कौन सी कंपनी है बच्चों? पहली दो की जोड़ी आती है बच्चों बैंक, दूसरी है बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। ये दो की जोड़ी होगी बैंकिंग इंश्योरेंस। नेक्स्ट दो जोड़ी आती है बच्चों, दैट इज योर सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, एंड यू हैव द 1% कंपनी, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। Then after that बच्चों you have the another जोड़ी that is small company, and I call something as गरीब private company. ठीक है, now mind you this is a terminology that is used not to disrespect any company, but it is just used from the perspective of for you to remember in the exam. That is the only point. Guys, small company, so you are already aware of what exactly is the from a small company standpoint, you remember what exactly is the criteria, correct? The criteria is that paid up share capital and turnover. बराबर है, paid up share capital has to be maximum, as of current year it should be 4 crores, turnover is to maximum 40 crores. बराबर ना? And it's an and both the condition are satisfied, only then it will be termed as a small company, correct? Sir, what about a Garib private company? Pay attention. Garib private company will be one which actually fulfills 4 conditions. ठीक है, what are those 4 conditions, guys? Look here. First, it should not be subsidiary or holding company of a public company. Okay, so the Garib private company should not be holding company or subsidiary company of a public company, as simple as that. ठीक है, point number 2, the paid up share capital and reserves and surplus should be maximum 1 crore. कितना होना चाहिए बच्चों? Maximum. ओके, नेक्स्ट आपका जो बोरोइंग्स है, again it has to be maximum 1 crore. And last is your turnover, including turnover of discontinued operations, has to be maximum
10 करोड़। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम 1 करोड़, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो इसके लिए मैं हमेशा यहाँ पे ना एक नंबर लिखता हूँ। गरीब प्राइवेट कंपनी में आपको एक नंबर याद रखना है, दैट इज 1110, दैट इज 1110। सर सीए फाइनल लेवल के ऊपर भी क्या एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं? यस आते हैं। ओके, इट विल बी अ क्वेश्चन विच विल बी ऑफ 5 मार्क्स, उसके अंदर से एक पॉइंट रहेगा 2 मार्क का ऑन एप्लीकेबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। सो आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है कि एप्लीकेबिलिटी वाइज एवरीथिंग दैट इज टू बी स्टडीड इज क्लियर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। ठीक है, अगर फोन में टाइम पास कर रहे हो तो टाइम पास करना बंद कर दो, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। ये एक चार्ट में पूरा एप्लीकेबिलिटी आपका कवर हो जाता है, बराबर ना? मैंने आपको बोला कारो के अंदर अपने को क्या चीजें पढ़नी है बच्चों? 2 चीजें पढ़नी है, एक तो एप्लीकेबिलिटी पढ़नी होती है, दूसरा क्लॉजेस पढ़ने होते हैं। एप्लीकेबिलिटी वाइज आई टोल्ड यू इट अप्लाइज ऑन ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब देयर इज अ नेगेटिव लिस्ट, दो दो की जोड़ियां हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है, सेक्शन 8 कंपनी 1% कंपनी अप्लाई नहीं होता है, स्मॉल कंपनी अप्लाई होता है, गरीब प्राइवेट कंपनी अप्लाई नहीं होता है, दो दो की जोड़ियां हैं। स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर देखना होता है, मैक्सिमम 4 करोड़ एंड 40 करोड़। गरीब प्राइवेट कंपनी का नंबर याद रखना है 1110, वाई 1110, 1110। ठीक है, नाउ गरीब प्राइवेट कंपनी वाइज you know it is not to be it should not be a subsidiary or holding company of a public company, that is one. Paid up share capital and reserves maximum 1 crore, borrowings have to be maximum 1 crore and turnover including turnover discount operation have to be maximum 10 crores। ठीक है बच्चों, तो इट इज एज सिंपल एज दैट, इतना आपको बेसिकली ये देखना है। और सर गरीब प्राइवेट कंपनी जो है, is this all conditions or any one condition? Remember you have to fulfill all conditions. A garib private company is one that fulfills all the conditions। ठीक है, मतलब क्या कि ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इन सबके बीच में एंड है। ठीक है, इन सबके बीच में एंड है, चारों फुलफिल होगा तब जाके यू बिकम अ गरीब प्राइवेट कंपनी, तब जाके यू कम इन द नेगेटिव लिस्ट एंड कारो डज नॉट अप्लाई ऑन यू। ठीक है, ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बोरोइंग्स जो पॉइंट है, इट इज रिमेंबर इट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। 1 मिनट के लिए भी अगर ये ब्रीच हो गया ड्यूरिंग द ईयर तो कारो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑफ कोर्स पेड अप शेयर कैपिटल डिविडेंड सरप्लस वी हैव टू चेक ऑन द 31st ऑफ मार्च एंड टर्नओवर आल्सो वी हैव टू चेक एज ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, इट इज ओनली बोरोइंग्स, इट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ओके बच्चों, तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ कारो, दैट इज द एप्लीकेबिलिटी। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द क्लॉजेस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी what all clauses are there. Guys, remember there are a total of when it comes to the standalone financial statements and CFS. ठीक है, remember clause number 1, clause number 1 से लेकर clause number 20 तक, okay, it applies on SFS, and your clause number 21, that is the only clause that applies on CFS। means SFS की जो कारो होगा, SFS का जो कारो होगा, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल्स का जो ऑडिट रिपोर्ट होगा, ऑडिट रिपोर्ट के पीछे हम लोग एनेक्चर अटैच करेंगे, तो दैट एनेक्चर विल हैव आंसर टू 20 क्वेश्चंस। एंड व्हेन इट कम्स टू CFS का जो कारो होगा, दैट विल हैव ओनली 1 क्वेश्चन का आंसर, दैट इज द 21st क्लॉज का आंसर, and there will be no other questions ka answer। So I hope the logic is clear। SFS you have to answer the first 20 clauses, in CFS you have to answer the first 21 clauses। okay, chalo।
Just 1 second, guys. Okay, look at this. I am currently showing you the Tata Motors का CFS का audit report. ठीक है? Look at this. What is this? The independent auditors report. Okay, to the members of Tata Motors Limited. Now, as is clearly visible, first of all, हेडिंग है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, बराबर ना? किसके ऊपर है ये? सीएफएस के ऊपर. तो यू एंड आई वी बोथ नो दैट in the Caro report there will be an answer to only one question, 21st question, correct? What is that question? We'll see later on. What my objective right now is to just show you that there will be, the auditor is going to answer only the 21st clause. ठीक है, let's go ahead and see. Okay. What I want you to, as you can see here also, guys, I told you opinion paragraph is always divided into two paras, para 1 and para 2. And out here it is clearly visible that they have given a true and fair view. They have given an unmodified opinion. Okay. We have the key audit matter paragraph. Of course, Tata Motors is listed, so therefore you have the key audit matter here. Next, if you go down, these are all key audit matters that's going on right now. Oh, yes. Look here, annexure A referred to in para 1 under, look here, can you see clause number 21? Directly they have jumped up, there is only one question ka answer, clause number 21, barabar, and then your annexure B starts. Okay, in short, annexure A got over in just one page. Annexure A got over in one place. Only the fact that what they have shown here is very clear in front of us. They have shown us that we have given answer to only clause number 21, nothing else. Okay, bachcho. Chalo, I hope that is clear now. Okay. Look at the next one, that is JSW Energy, and this is report on standalone Ind AS financials. Means you and I, we both know that this is going to comprise of what? This is going to comprise, guys, of your
Okay, sorry, I think so there's some issue technically. If at all little bit part was missed out, then in that case, if at all little bit part was missed out, then in that case, please ensure that you watch this video on YouTube. Okay, बच्चों? हाँ. I was just showing you that in the case of Tata Motors, I showed you that in CFS, on CFS, there is a 21st clause, correct? And in SFS, the auditor must have reported on 20 clauses. Look here. Yes. Look at this independent auditors report. See, clause number 1, यहाँ से start हो रहा है. Clause number 1, 2, 3. So these are all questions which the auditor has answered. ठीक है, clause number 4, 5, 6, 7. And accordingly, when you go towards the end, you'll realize, अच्छा ये पुराना वाला chapter से भी है. Sorry, 1 second. This is which year? Oh, this is annual report for 17-18. So this is the old one. Okay, we have to see the new audit report. Just 1 second. Let me show it to you that as well. Yes. ये देख लो. Standalone financials की audit report है ये. When you go ahead and see the Caro, yes. As you can see, there will be answer to 20 clauses. Correct? Yes. As you can see out here, there are total of 20 clauses here. Okay? So in short, net, we are crystal clear on this perspective that I just showed you out here UFO का audit report, UFO का SFS का audit report I showed you, and out here I showed you Tata Motors का CFS का audit report, correct? In that we clearly saw that it had the 21st clause, and here we saw that there are total 20 clauses. Okay, chalo. Now let us start with the one by one. Each clause we have to start one by one. ठीक है? Let's go ahead. चलो. हाँ बच्चों, now clause number 1. As you can see on the screen, clause number 1 is about property, plant and equipment. ठीक है? So what are the questions that the auditor has to answer? ठीक है? The auditor has to answer that whether the client is maintaining first proper records. ठीक है? Sir, do we have to by heart every clause? Yes. ठीक है? Have to understand, we have to memorize कि कौन सा clause कौन सा है. आपको उसके बाद सारे के सारे clauses जो है बच्चों को by heart करने पड़ेंगे, and as it is you have to write them in the exam. Okay? Whether the client company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details of property, plant, equipment, intangible assets and situation of property, plant, equipment. ठीक है? इसका मतलब क्या बच्चों? Whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details of property, plant, equipment, intangible assets and location of PP. ठीक है? Means where exactly is the asset located. ये सारी details क्या ये लोग maintain कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details of property and equipment, intangible and situation. ठीक है? तो पहला सवाल आपको ऑडिटर को आंसर देना है कि whether the company actually has maintained all these records properly or not. सेकेंड पॉइंट है बच्चों फिजिकल वेरिफिकेशन. ठीक है? आपको नहीं करना है, आपको आंसर देना है कि आपकी जो क्लाइंट कंपनी है, क्या आपकी क्लाइंट कंपनी फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है कि नहीं कर रही है. Whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals. क्या आपके क्लाइंट कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स को रीजनेबली वेरीफाई किया है कि नहीं किया है. Whether any material discrepancy were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts. So very simple, आपको जवाब देना है कि आपका जो क्लाइंट कंपनी है उसने बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कि नहीं किया है. यस और नो में जवाब देना है.
एंड दूसरा बच्चों मतलब यू हैव टू राइट दैट एग्जैक्ट सेंटेंस। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट जब उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, क्या उनको कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी दिखी? नाउ माइंड यू, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का थ्रेशोल्ड उन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडिटर। ठीक है, वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वाज नोटिस्ड, ठीक है, इज सो वेदर दे हैव प्रॉपर्ली डेल्ट विद, मतलब जो भी डिस्क्रिपेंसी थी उसको उन्होंने बुक्स में प्रॉपर्ली डील किया कि नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइटल डीड। ऑफ कोर्स मेरा क्लाइंट जो बोल रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स उनके हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर उनका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है बच्चों, हियर वी आर नॉट लुकिंग एट द इंटेंजिबल, वी आर ओनली लुकिंग एट द इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो याद रखना वेदर द टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, if not provide details of the same description of the property, gross carrying value held in the name of, and reason for not being held in the name of the company. So as simple as that, इतने small points आपको याद रखने बच्चों, title deed wise, whether the title of immovable property as held in the name of the company, if not provide details of the same, that is description of the property, gross carrying value held in the name of, reason for not being held in the name of the company, ऐसा आपको एक टेबल बना के बताना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या है, description of the property. Point number 2 is gross carrying value. Point number 3 held in the name of. Point number 4 is reason for not being held in the name of the company. Revaluation. Whether the company has revalued its property, plant, equipment or intangible assets or both during the year, and if so, whether the revaluation is based on valuation by registered valuer. Now revaluation में 3 क्वेश्चन है, क्या आपके क्लाइंट कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन किया? अगर रिवैल्यूएशन किया तो इन द केस क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिवैल्यूएशन कराया? एंड लास्ट पॉइंट इज दैट specify the amount of change if the change is 10% or more in aggregate of the net carrying value of each class of property plant equipment. ठीक है, तो एस वेरी सिंपल, रिवैल्यूएशन के 3 पॉइंट्स हैं। पहला, क्या बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल्स को रिवैल्यू कराया? अगर रिवैल्यू कराया तो इन दैट केस क्या बेसिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिवैल्यूएशन कराया? एंड लास्ट क्वेश्चन था, एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों कि अगर रिवैल्यूएशन हुआ है then in that case whether the amount of change is 10% or more, minimum 10% का चेंज है तो आपको अमाउंट ऑफ चेंज भी बताना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट इज बिना प्रॉपर्टी। आखिरी सवाल कि क्या आपके क्लाइंट के अगेंस्ट देयर हैज बीन एनी कोर्ट केस फाइल्ड अंडर द बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, लेट्स गो एंड सी कि इस क्लाइंट के केस में क्या हुआ है बच्चों। ठीक है, हाउ हैज द ऑडिटर आंसर्ड दिस फर्स्ट क्लॉज। लुक हियर, देखो हाँ, सिंपली मैंने आपको क्या बताया, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूं ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़ा तो इन दैट केस यू नो हाउ इट एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ। ठीक है, माय पर्सपेक्टिव इज दैट कि व्हेन यू गो आउट इन द मार्केट एज एन ऑडिटर, आपको डर नहीं लगना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट देख के। ठीक है, द कंपनी हैज मेंटेन्ड प्रॉपर रिकॉर्ड्स showing full particulars including quantity details and situation of the PPE. Company has maintained proper records in full particulars of intangible also. बराबर ना? ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस एंड रिकॉर्ड कंपनी हैज अ रेगुलर प्रोग्राम ऑफ फिजिकल, पॉजिटिव पॉइंट, बराबर ना? दे आर गिविंग अ पॉजिटिव पॉइंट टू द कंपनी दैट दे आर डूइंग रेगुलर फिजिकल वेरिफिकेशन, ओके, बाय विच द पीपी इज वेरीफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, बराबर, 2 साल में एटलीस्ट वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद दिस डूइंग देयर the periodicity of verification is reasonable having regard to the size of the company, no discrepancy was noticed on such verification। मतलब क्या ऑडिटर ने बोला है कि यस फिजिकल वेरिफिकेशन वो रीजनेबल इंटरवल पे कर रहे हैं, करेक्ट। The company does not have any immovable property other than immovable where the company is a lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee. Accordingly, clause this particular clause is not applicable. 3(1)(c) of the order is not applicable. The reason is that बच्चों because ये पर्टिकुलर क्लाइंट के पास ये बोल रहे हैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जहां पे भी प्रॉपर्टी है वो सब उनके क्या है, लीज प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इनका है नहीं, जो भी है उन्होंने रेंट पे लेके रखा है। अनदर पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, और जहां जो रेंट पे लेके रखा है वहां पे तो उनका नाम होगा ही नहीं। ओके, गिवन टू अस उन्होंने कोई क्लॉज नंबर 4 में कोई रिवैल्यूएशन किया ही नहीं। जब रिवैल्यूएशन ही नहीं किया है तो रिवैल्यूएशन के 3 क्वेश्चन में से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा, राइट। एंड लास्ट पॉइंट वाज दैट कि बिना नो प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड, बराबर, और पेंडिंग। ठीक है, वो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसफर उनके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हो कितना, सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक इज। ठीक है, द लॉजिक इज वेरी सिंपल गाइस। ठीक है, लॉजिक इज वेरी सिंपल। द कंपनी गाइस, the company is trying to present a picture, बराबर ना? The company is trying to present a picture of its business to the
shareholders, to the users, everybody. बराबर ना? Now remember, it is the job of the practicing CA, it is the job of the auditor to verify कि whether this picture that they are showing is true and fair or not. Simple, as simple as that. That is the reason why आज हम लोग audit report के through, okay बच्चों, that is the reason why आज हम लोग बच्चों ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू सारी सच्चाई बता रहे हैं. एंड ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू आज जो एक कारो का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, उससे भी हम लोग क्लाइंट कंपनी की पूरी पोल खोल रहे हैं. ठीक है, कि जहां बेसिकली सारी डिटेल्स यूजर को मिल जाए ताकि उनको मालूम पड़ जाए, दे कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, दे वांट टू डू बिजनेस विद द कंपनी और नॉट. ये कारो रिपोर्ट पूरी ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग कारो should give them an understanding whether the client is being truthful or not, are they doing things properly or not. That is the simple agenda. चलो बच्चों, अगला क्लॉज आता है बच्चों इन्वेंट्री वाला. अगला क्लॉज कौन सा है, इन्वेंट्री. ठीक है ना, इन्वेंट्री वाला क्लॉज के अंदर भी बच्चों बहुत सिंपल है. ठीक है, पहला क्लॉज इन्वेंट्री वाला है. पहला पॉइंट है अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी. अब देखना यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी का थ्रेशोल्ड दिया है, बराबर ना, क्या है 10% और मोर. इधर डिस्क्रिपेंसी का थ्रेशोल्ड दिया है 10% और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंटरी वर नोटिस्ड, एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एज सिंपल एज दैट. वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंटरी वाज नोटिस्ड, एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्लियर है बच्चों? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. तो द वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन द ऊपर वाला पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्या डिफरेंस है? हाँ, अ वेरी गुड डिफरेंस इज दैट यहाँ पे देखना, यहाँ पे बच्चों कहीं पे भी यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का थ्रेशोल्ड नहीं दिया था, बराबर ना, यहाँ पे दिया हुआ है इट इज 10% और मोर. चलो, एंड द लास्ट पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल लोन. वर्किंग कैपिटल लोन वाला पॉइंट है. अब ये ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ. आपको भी आपके नोट्स में डायग्राम बनाना है. बच्चों, वी हैव टू सिंपली आंसर इफ माय क्लाइंट कंपनी has taken from bank or financial institution, if my client company has taken they have been sanctioned working capital limit in excess of 5 crores. क्यों किया होगा ये, उन्होंने गिरवी रखा होगा क्या? लेट्स सपोज दे हैव केप्ट एज अ सिक्योरिटी, दे हैव केप्ट देयर current assets as security. Okay, now therefore when the company is doing this, they are keeping the current asset security. So therefore remember, the company guys, they have to basically file with the bank or financial institution. They have to file quarterly statements or reports, and these have to match with the books or accounts. So auditor has to answer this question. If at all this is the case, if at all my client is falling in this case, this is the case, if at all my client is falling in this case, that as a company, whether they have been sanctioned working capital limit of more than 5 crores from bank or financial institution, ठीक है, and as a security they have provided current assets, ठीक है, in that situation whether the quarterly statement or reports are in accordance with the books or accounts or not, are in agreement with books or accounts or not. If not, give details. ठीक है, ये देख लो. Whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crores in aggregate from banks or financial institution on the basis of security of current assets. Yes, then whether the quarterly return or statements filed by company with such banks are in agreement with the books or accounts. If not, you have to give details. Okay बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's go to clause number 3. Clause 3 पे चलते हैं. Just give me 1 minute before that.
चलो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. Invest now. Let's look at clause number 3. This clause was already asked in the May 25 attempt. ठीक है, ऑलरेडी पूछ लिया था बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now सर क्या सारे के सारे क्लॉजेस छोटे हैं बड़े हैं? कुछ क्लॉज बड़े हैं, कुछ क्लॉज छोटे हैं. ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें सारे क्लॉज अंडरस्टैंड करने. ठीक है, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस एंड गो फॉर द एग्जाम. एज सिंपल एज दैट. ठीक है बच्चों, लुक एट क्लॉज नंबर 3 नाउ. एप्लीकेबिलिटी. Whether during the year the company has provided loans or provided any advances in the nature of loans or stored guarantee or provided security to any other entity. Now, this clause is not applicable to companies whose principal business is to give loans. So remember, this is not going to be applicable on, this clause is specifically not going to be applicable on NBFC. Okay, this will not apply on NBFC. The reason being that it is not going to apply on NBFC is because of the fact that because it is not applicable to companies whose principal business is to give loans. Sir, प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ गिविंग लोन तो बैंक का भी होता है. ठीक है, तो बैंक के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं, बैंक का वर्ड आपने क्यों अप्लाई नहीं किया यहाँ पे? ठीक है, बिकॉज गाइस पूरा का पूरा कारो ही बैंक पे अप्लाई नहीं होता है. समझ रहे हो, पूरा कारो ही बैंक पे अप्लाई नहीं होता है. तो इन दैट केस फिर ये क्लॉज की क्या बात है? ठीक है, वेरी गुड. चलो सर, तो इस क्लॉज में हमें बताना क्या है? इस क्लॉज के अंदर बच्चों हमें सिंपली ये बताना है व्हाट इज द ब्रेकअप, कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन्स दैट हैव बीन ग्रांटेड बाय द क्लाइंट कंपनी टू रिलेटेड पार्टीज. एंड रिलेटेड पार्टी में भी कौन? सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज. बस कितने अमाउंट के लोन्स ग्रांट किए, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, कितना बेसिकली यू आर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स योर रिलेटेड पार्टीज, एंड कितने अमाउंट के लोन्स आपने देखे रखे हैं, द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग देयर ऑन बैलेंस आउटस्टैंडिंग with respect to loans and advances to parties other than subsidiary, JV and associates. ठीक है, let's go and see एक्चुअल में इसको कैसे प्रेजेंट किया गया. ये देख लीजिए बच्चों. Here you can clearly see we are looking at clause number 3. Based on audit procedures carried on by us and as per information given by the company has provided loans or stored guarantee to any other entity as below. ठीक है, तो ये देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है. ये देखो क्लियरली बोला हुआ है that key to any other entity as below. यहाँ पे लिखा हुआ है company has not provided any guarantee security for in respect of for any unsecured to firm partner. The company has made investments. During further, the company has provided guarantee unsecured loans during the year in which the requisite information given in para 3A below. बराबर ना, ये देख रहे हो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि when it comes to our associates, when it comes to our joint ventures and subsidiaries, बराबर ना, तो इन केस कितने अमाउंट देके रखे, लोन दिया है इन्होंने, सब्सिडरी का लोन आउटस्टैंडिंग है, बराबर ना, कितना 1029 लाख, मतलब अराउंड 1029 लाख, बराबर ना, इतने अमाउंट का नहीं, मतलब 10 करोड़ जितना इनका लोन अब भी आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, एंड ये ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये पुराना लोन है, बराबर, पुराने सालों का लोन है. ड्यूरिंग द ईयर तो कोई भी नंबर हमें दिख नहीं रहा है, बराबर ना, ये देखो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे कोई भी नंबर दिख नहीं रहा है, मतलब करंट ईयर में नहीं दिया है, लेकिन लास्ट में दिया था, उसका आज बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग बताना है उस पर्टिकुलर साल की बैलेंस शीट में. ठीक है, एंड प्लस एसोसिएट्स को कितना दिया बच्चों, इट इज 200 लाख, बराबर ना, मतलब 2 करोड़, 2 करोड़ का लोन, 2 करोड़ का जो अमाउंट है बेसिकली इनके यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन दिस. ठीक है बच्चों, चलो, एंड अदर्स को मतलब क्या, अदर देन दीज कंपनीज तो किसी को कुछ दिया भी नहीं है और कुछ आउटस्टैंडिंग भी नहीं है. ठीक है, तो सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट में से हमारा जो एक क्लाइंट कंपनी का एग्जांपल हम देख रहे हैं, वहां पे सब्सिडरी का आउटस्टैंडिंग है, एसोसिएट का, जेवी का किसी का कुछ आउटस्टैंडिंग है ही नहीं. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशंस. दूसरा क्लॉज 3 का दूसरा पॉइंट इज दैट कि जब जब कोई इन्वेस्टमेंट की गई है, लोन दिया गया है, क्या उसके टर्म्स वर दे प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट और नॉट. मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके क्लाइंट कंपनी ने किसी को लोन दे दिया 2% ब्याज पे, मार्केट में 10% ब्याज चल रहा है, आपका क्लाइंट कंपनी 2% ब्याज पे लोन दे रहा है, तो इन दैट केस ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपके क्लाइंट कंपनी के लिए प्रेजुडिशियल है, हार्मफुल है, बराबर ना. आपके क्लाइंट कंपनी का तो 8% का नुकसान हो रहा है, तो योर शेयर होल्डर्स ऑट टू नो अबाउट दिस, तो वो हम बताएंगे. ठीक है,
whether investments made, guarantees given or securities given and the grant of all loans, ठीक है, are not prejudicial to the company's interest. नेक्स्ट, रीपेमेंट रेगुलरिटी, जहां जहां पे आपके क्लाइंट कंपनी ने पैसे डाले हैं, जहां जहां पे आपके क्लाइंट कंपनी ने पैसे डाले हैं, in respect of loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular. As simple as that. क्या बोला मैंने बच्चों, आपको रिपेमेंट रेगुलरिटी बतानी है कि जहां जहां आपके क्लाइंट कंपनी ने पैसे देके रखे हैं वहां पे बेसिकली क्या फंडा चल रहा है. In respect of loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the payment receipts are regular. जहां जहां पैसे देके रखे हैं क्या वहां से पैसा रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इन दैट केस कुछ एक्शन लेना चाहिए. बराबर, देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओवरड्यू फॉर 90 डेज. If the amount is overdue, state the total amount overdue for more than 90 days and whether reasonable steps have been taken for recovery. ठीक है, इमेजिन करो आपकी क्लाइंट कंपनी ने सब्सिडरी को लोन दिया. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना इस वाले केस में, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि सब्सिडरी को बच्चों लोन देकर रखा था, बराबर ना, 10 करोड़ का, यहाँ पे 2 करोड़ का. अगर ये पैसा आउटस्टैंडिंग है तो देयरफॉर योर होल्डिंग कंपनी हैज टू टेक सम स्टेप्स फॉर रिकवरी. दे नीड टू टेक सम स्टेप्स फॉर रिकवरी, बराबर ना. तो क्या उन्होंने रिकवरी के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए कि नहीं लिए, वो देखना है. इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. डन बच्चों, चलो वेरी गुड. नेक्स्ट इज रीशेड्यूलिंग और एक्सटेंशन और ओवरड्यू लोन. ये क्या है बच्चों, पे अटेंशन, वेरी सिंपल. आपके क्लाइंट कंपनी ने किसी को लोन दिया था, भले वो रिलेटेड पार्टी हो, आउटसाइडर हो, अमाउंट की ड्यू डेट थी, ड्यू डेट पे पैसा आना चाहिए था, लेकिन आपके क्लाइंट कंपनी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस व्यक्ति को फेवर करते हुए लोन को रीशेड्यूल करवा दिया, बोला और 2 साल बाद दे देना. तो आपके कंपनी का तो पैसा जो आज रोकड़ा होने वाला था, आज रोकड़ा नहीं हुआ. ठीक है, आपके क्लाइंट कंपनी ने, या फिर इमेजिन करो फ्रेश लोन दे दिया और बोला कि इसी पैसे से पुराना लोन रिपे कर दो. ऐसे केस में थोड़ी आपके क्लाइंट कंपनी का पैसा रोकड़ा हुआ है, नहीं हुआ है. ठीक है, आपके क्लाइंट कंपनी ने उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड करवा दी भाई. व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर, इधर यू से फ्रेश लोन गिवन फॉर ओल्ड लोन, इधर यू से एक्सटेंशन दे दिया, इधर यू से नई ड्यू डेट, व्हाटएवर यू से. ओके, पे अटेंशन, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाटएवर यू से. ठीक है, रीशेड्यूलिंग बोल दो, एक्सटेंशन ओवरड्यू लोन बोल दो, व्हाटएवर यू से. Whether any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended or fresh loan granted to settle the overdue existing loan given to the same party. If so, specify the aggregate amount of such dues renewed or extended or settled by fresh loans. ठीक है, तो इन दैट केस क्या करना है बच्चों, स्पेसिफाई करना है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड और एक्सटेंडेड और सेटल्ड बाय फ्रेश लोन्स. ठीक है, क्लियरली आइडेंटिफाई कर लो कि कितना अमाउंट बेसिकली इन्होंने किया है, व्हाट इज द एग्रीगेट अमाउंट जो इन्होंने बेसिकली एक्सटेंड करवा दिया, मतलब लटका दिया और बोल दिया बाद में दे दो, चलेगा. एंड परसेंटेज ऑफ दिस टोटल, जो अपना टोटल निकाला, टू द टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज. ठीक है, ये क्लॉज भी अप्लाई नहीं होता है फॉर एनबीएफसीज, बराबर ना. दिस आल्सो डज नॉट अप्लाई टू एनबीएफसीज, के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, यहां देखते हैं कुछ बोला है क्या इन्होंने. नहीं, यहां पे कोई क्लॉज नहीं है उसका. चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड लोन्स विदाउट रीपेमेंट पीरियड. ये क्या है बच्चों, दीज आर ऑन डिमांड लोन्स. मतलब क्या कि जब हम पैसा मांगेंगे तब पैसा दे देना. ऐसे कोई लोन्स आपके क्लाइंट कंपनी ने दिए तो उसकी डिटेल्स यहां बतानी है. वेदर योर क्लाइंट कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स, या तो उनको बोल दो रीपेबल ऑन डिमांड, या उनको बोल दो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रीपेमेंट. ऐसा कोई लोन देता है क्या गधा. आपकी क्लाइंट कंपनी इतना फेवरेटिज्म कर रही है, इतना बेसिकली प्रेफरेंस दे रही है कुछ लोगों को कि उनको बिना रीपेमेंट पीरियड के लोन दे दिया, बिना रीपेमेंट पीरियड के लोन दे दिया. ठीक है, ऐसा थोड़ी चलता है भाई. इफ सो, स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज देयरऑफ टू टोटल लोन्स ग्रांटेड. एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स ग्रांटेड टू प्रोमोटर रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड सो एंड सो. ऐसे कितने ऑन डिमांड पेबल लोन कितने रिलेटेड पार्टी को दे दिए, कितने प्रमोटर्स के दिए, वो बताना. ये देखो, इसका यहाँ पे आंसर दिया है, ये ऐसा इस केस में हुआ है. देखो, ऑल पार्टी, प्रमोटर, रिलेटेड पार्टी. ठीक है बच्चों, एग्रीगेट ऑफ लोन्स और एडवांस इन नेचर ऑफ लोन रिपेबल ऑन डिमांड.
ठीक है, एग्रीगेट अग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई एनी टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रिपेमेंट, तो इन द केस टोटल कितने बच्चों, कुल मिला के 10 करोड़ के लोन्स जो हैं दे आर रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, इसका टोटल निकालना है, परसेंटेज ऑफ लोन्स इन नेचर ऑफ लोन्स कितना है बच्चों, 100%। टोटल लोन्स कितने दिए थे, इतने ही लोन्स इन्होंने दिए, और पूरे के पूरे जितने भी लोन्स दिए थे वो सारे ऐसे ही थे रिपेबल ऑन डिमांड। मतलब इमेजिन करो जो जो लोन दिया है इट इज बेसिकली रिपेबल ऑन डिमांड, तो इसलिए हम परसेंटेज आ गया 100%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लॉज नंबर 4 पे चलते हैं। अ वेरी सिंपल क्लॉज, ठीक है, दिस क्लॉज एक्चुअली प्रोवाइड्स यू सेक्शन 180 186, इट प्रोवाइड्स यू लिमिट which you can't go overboard. ठीक है, in respect of loans, investment guarantees, whether the provision of 186 have been complied with, if not provided, मतलब क्या क्या आपने लिमिट ब्रीच तो नहीं कर दी 180 186 वो बताना है। क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट डिपॉजिट्स, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आपको पता है डिपॉजिट्स के माध्यम से पैसा लेना, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोन दैट द कंपनी इज टेकिंग। ठीक है, इट इज अ डेट ऑन द कंपनी। ठीक है, देयरफॉर इफ योर कंपनी हैज टेकन डिपॉजिट्स फ्रॉम द general public, and remember that is possible only and only not all companies, private companies can't do that, you have to be an eligible public company। अगर आप एक eligible public की कंपनी बन जाते हो, only after that you can take deposit from general public। if your client company is an eligible public company, if they have taken deposits from आम जनता, then this clause gets activated। that is where auditor को बताना पड़ता है कि क्या आपकी कंपनी ने सेक्शन 73 to 76 का पालन किया है क्या, आरबीआई के किसी डायरेक्शंस का पालन किया है क्या, एंड लास्ट कंपनी लॉ बोर्ड के, कंपनी लॉ बोर्ड बोल दो या फिर कोई नेशनल कंपनी एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोल दो, उनने कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। एज सिंपल एज दैट, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, यूजुअली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, गाइज इफ यू रिमेंबर, इफ योर क्लाइंट कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 148 हमने इंटर में पढ़ा हुआ है, सेक्शन नंबर 148 अप्लाई होता है ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, उसके अंदर बोला गया है कि विच आर दोस कंपनीज विच हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो देयरफॉर एज अ चार्टर्ड, रिमेंबर डोंट फॉरगेट गाइज, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड इन CRA 1, बराबर है। इनका ऑडिट कौन करने वाला है, प्रैक्टिसिंग CA में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कौन करने वाला है, प्रैक्टिसिंग CA। ठीक है, तो रिमेंबर देयर इज अ क्लियर कट डिमार्केशन फॉर ऑडिट। CRA 1 का ऑडिट कौन करेगा, प्रैक्टिसिंग CA में, फाइनेंशियल का ऑडिट करना प्रैक्टिसिंग, देयर इज अ क्लियर, नोबडी विल डाइवर्ज इनटू ईच अदर। ठीक है, बट व्हाट आर वी स्टडीइंग राइट नाउ बच्चों, राइट नाउ वी आर स्टडीइंग दैट प्रैक्टिसिंग CA जो है, he just needs to check whether the cost records are made and maintained। what is the word, made and maintained, मतलब क्या सिर्फ देखना है कि बनाया कि नहीं बनाया, बस डिटेल में ऑडिट नहीं करना है, क्योंकि डिटेल में ऑडिट करने का काम हमारे प्रैक्टिसिंग CMA का है। ठीक है बच्चों, सी इफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेक्शन 148 अप्लाइज ऑन द क्लाइंट। ठीक है, अंडर वन सेक्शन 148 if applicable whether such accounts and records have been made and maintained। बस चलो नेक्स्ट आएगा बच्चों क्लॉज नंबर 7 दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज। नेक्स्ट क्या आने वाला बच्चों, क्लॉज नंबर 7 दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज गाइस। ठीक है, दिस क्लॉज को याद कैसे रखने का है, याद रखना 7 गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 7A एंड 7B। रिमेंबर अपन 7 को ऐसे लिखते हैं ना यार, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा 7A एंड 7B, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 7A के अंदर आने वाला बच्चों अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, 7B के अंदर आने वाला बच्चों डिस्प्यूटेड ड्यूज। नाउ 7A का मतलब क्या है, ध्यान सुनना, इज द कंपनी रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। क्या बोला मैंने, इज द कंपनी रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड, ESI, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, एनी अदर ड्यूज। ठीक है, क्या मेरा क्लाइंट कंपनी रेगुलरली उनके जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है विच आर अनडिस्प्यूटेड, मतलब वो पे करनी ही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इन माय केस if I'm raising an invoice on somebody, if I'm getting the payment, तो उसके ऊपर जितना मैं GST लगा रहा हूँ वो अनडिस्प्यूटेड है ना यार। वो तो मैंने अगर मैंने 1 लाख की सर्विस दी, 18% GST 18,000, वो तो अनडिस्प्यूटेड हो गया, तो 18,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट को देना ही है। तो एज एन ऑडिटर मुझे सिंपली बोलना है मेरे क्लाइंट ने जहां जहां जितना GST था, जितना टैक्स था, स्टैट्यूटरी ड्यूज, क्या उन्होंने रेगुलरली गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो कितना अमाउंट नहीं किया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। ठीक है, if not extent of arrears or outstanding dues as at last day of financial year, कितना अमाउंट पेंडिंग है as on 31st March, बट अमाउंट उतना ही बताना है मुझे which is pending for more than 6 months, for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated by the auditor।
टाइमलाइन वाइज दिखाऊं तो लुक हियर, टाइमलाइन वाइज दिखाऊं बच्चों तो ऐसा आएगा। There was a GST payable in August 24. There was a GST payable in Jan 25. यहाँ पे अमाउंट था 3 करोड़ का, यहाँ पे अमाउंट था 2 करोड़ का। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल ये इट इज अनपेड, मैं अनपेड वाले अमाउंट बता रहा हूँ। टोटल आउटस्टैंडिंग इज 5 करोड़, ठीक है। बट रिपोर्ट कितना करना है? रिपोर्ट करना है अंडर कारो क्लॉज 7A। रिपोर्ट कितना करना है बच्चों? ओनली 3 करोड़, ठीक है सर। ऐसा क्यों? 5 करोड़ पेंडिंग है क्योंकि बच्चों दिस अमाउंट इज पेंडिंग ओनली फॉर 3 months, नॉट फॉर 6 months। सी बोथ आर पेंडिंग एज ऑन 31st March, क्लियरली याद रखना, बोथ आर पेंडिंग एज ऑन 31st March, ठीक है। दे आर क्लियरली पेंडिंग बोथ ऑफ देम, दिस नंबर ऑल्सो एंड दिस नंबर ऑल्सो। बट विच अमाउंट इज पेंडिंग फॉर मोर देन 6 months? इट इज ओनली 3 करोड़, करेक्ट। सो इसके लिए 3 करोड़ विल बी द अमाउंट दैट विल बी रिपोर्टेबल अंडर कारो क्लॉज 7A। ओके सर, व्हाट अबाउट 7B? 7B के अंदर बच्चों आपको वो सारे अमाउंट्स बताने हैं विच आर बेसिकली जहां पे आपका एक ऑर्डर पास हुआ है डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया एंड यू हैव अपील्ड अगेंस्ट दैट ऑर्डर, ठीक है। देयरफॉर एक आपका देयर इज अ कोर्ट केस दैट्स गोइंग ऑन, देयर इज अ लिटिगेशन गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूटेड ड्यूज। एंड वो कितने अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट ड्यूज है वो आपको बताने हैं इन अ प्रॉपर टेबल, ठीक है। In case dues have not been deposited on account of any dispute, the auditor shall indicate बच्चों the amount involved and the forum, कहां पे ये कोर्ट केस चल रहा है। एक सिंपल एक लेटर लिखना टू द डिपार्टमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिस्प्यूट। याद रखना, डिस्प्यूट तभी माना जाएगा जब आपका भाई उन्होंने ऑर्डर पास किया, आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूट। लेट अस सी, ये देखो, the company does not have liability for service tax, excise duty, sales tax, VAT during the year since effective 1st July. These dues have been subsumed under GST. According to the information given to us, together in our opinion, the amounts deducted in the undisputed statutory dues have generally been regularly deposited with appropriate authorities. So the auditor is clearly saying that वो लोग regularly deposit कर रहे हैं, though there have been slight delay in few cases for tax, professional tax and labor में बस थोड़े बहुत मोटे डिले हैं। According to information given to us based on examination of the records, no undisputed amounts payable in respect of GST were in arrear as on 31st of March for a period of more than 6 months. तो यहाँ पे clearly positive बोला गया है, कोई भी अमाउंट more than 6 months से पेंडिंग नहीं थी। एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्यूटेड गाइस? उसके लिए देखो पूरा टेबल बना के दिया है, ठीक है। नेम ऑफ द लॉ, वैल्यू एडेड टैक्सेस, पुराने लॉस के टैक्सेस हैं जो बेसिकली अभी भी आज भी इनके कोर्ट केस चल रहे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूज, अमाउंट बताया, पीरियड कौन से साल का कोर्ट केस चल रहा है, कहाँ पे कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है, पर ना इन यहाँ पे और कुछ रिमार्क्स क्या है वो बताने, ठीक है। ऐसा पूरा टेबल अपना बनाना पड़ता है। चलो, क्लॉज 8 क्या बोल रहा है बच्चों? क्लॉज 8 टॉक्स अबाउट अनडिस्क्लोज्ड इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनडिस्क्लोज्ड इनकम? कि जहां बेसिकली आज अगर आपके क्लाइंट ने कोई पैसे ऑफर नहीं किए थे, दे हैड नॉट, लेट्स से इट वाज ब्लैक मनी, इट वाज नॉट ऑफर्ड टू टैक्स, इट वाज नॉट शोन इन द अकाउंट, बट अभी क्या हुआ, इनकम टैक्स असेसमेंट के टाइम पे वो पैसा पकड़ा गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको टैक्स को ऑफर करना पड़ेगा, यू हैव टू शो इट इन द अकाउंट्स। ऐसे केस में आपको बताना है whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts or not, whether any transactions not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under Income Tax Act. If so, whether previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year. चलो, ओके बच्चों, क्लॉज 9 क्या बात करता है बच्चों? क्लॉज 9 भी एक बड़ा क्लॉज है। क्लॉज 9 बात करता है अबाउट द लोन्स दैट द क्लाइंट हैज टेकन, बेसिकली बोरोइंग्स, ठीक है। एंड वी डिस्कस अबाउट वेदर मेरे क्लाइंट ने जितने लोन्स लिए क्या उन्होंने बेसिकली उनको रीपे किया कि नहीं किया, ठीक है। लेंडर वाइज डिफॉल्ट, whether the company has defaulted in repayment of borrowings of loans to financial institutions, bank, debenture holders और governments, मतलब लोन लिया और रिपे नहीं किया। अगर ऐसा है तो इन द केस क्या नेचर ऑफ बोरोइंग है, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, क्या इंटरेस्ट था, डिले था, वो बताना है,
ठीक है, इसका देखते हैं। इनका तो कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं है। चलो, विलफुल डिफॉल्टर, क्या आपके क्लाइंट कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर बताया गया है? ठीक है, बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बैंक ने विलफुल मतलब कि पैसा होने के बावजूद पे नहीं कर रहे। पर्पस ऑफ टर्म लोन्स बच्चों, क्या आपके क्लाइंट कंपनी ने पैसा लिया और कहीं और लगा दिया? ठीक है, उसकी पोल यहां पे अपने को खोलनी है। वेदर टर्म लोन्स वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर ऑब्टेन्ड, इफ नॉट अमाउंट्स आर डाइवर्टेड एंड पर्पस। मतलब एग्जांपल लेते हैं, लोन लिया फॉर बिजनेस एक्सपेंशन एंड उसको यूज कर लिया फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ रीपेइंग द ओल्ड लोन, तो जाहिर सी बात है इट इज अ पर्पस डाइवर्जन ना। शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म, फंड्स शॉर्ट टर्म बेस पे रेस किए और फिर उनको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा दिए, ये भी गलत है। लोन्स टेकन टू मीट सब्सिडरी कंपनी के लाइबिलिटीज, बच्चों आप होल्डिंग कंपनी लोन ले रही है सब्सिडरी की लाइबिलिटी पे करने के लिए, ये भी इसकी भी पोल खोलनी चाहिए। Whether your client company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet obligation of subsidiary JV assets, if so whether thereof with the nature of such transaction and amount in each case बताना है। लोन टेकन अगेंस्ट प्लेजर सिक्योरिटी, क्या आपके क्लाइंट कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर्स को गिरवी रख के बेसिकली क्या कोई लोन ले लिया? Whether any company has raised any loans during the year on pledge of security held in subsidiary JV assets, if so उसकी डिटेल्स हमें बतानी है। एंड वेदर द कंपनी डिफॉल्टेड, आगे ऐसे जो लोन लिया उनका डिफॉल्ट किया कि नहीं किया वो बताना है। तो 100 बात की एक बात, क्लॉज नंबर 9 सिंपली बात करता है लोन लेने के बाद लोन नहीं देने के जितने भी चीजें वो क्लॉज नंबर 9 में आने वाली है। ठीक है बच्चों, क्लॉज 10 भी बहुत सिंपल है, इट टॉक्स अबाउट आईपीओ एफपीओ 40 to 62। क्या आपके क्लाइंट कंपनी ने आईपीओ एफपीओ के माध्यम से लोन नहीं कैपिटल रेस किया, एंड जिस पर्पस के लिए रेस किया था उधर ही यूज किया कि नहीं किया? Whether the money raised by way of IPO, FPO, including debt instrument, मतलब debentures, were utilized for the purpose for which those were raised. If not, details along with the default, delay and subsequent rectification has to be reported. ठीक है, कहां बेसिकली उन्होंने पैसा लगा दिया, क्या उन्होंने रेक्टिफाई भी किया उस चीज को, वो अपने को बताना है। 40 to 62, whether the company has made any preferential allotment or private placement। बच्चों याद रखना प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या सेक्शन होता है 42, एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए होता है 62, मतलब अपने राइट शेयर्स हो गए, ईसॉप हो गए, ऑल ऑफ दैट फॉल इन 62। तो आपके क्लाइंट कंपनी ने क्या राइट शेयर्स के थ्रू पैसे उठाए, ईसॉप के थ्रू पैसे उठाए, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसे उठाए, ठीक है, ऐसा सब किया, तो इन दैट केस क्या उनका पर्पस क्या था और उसको उधर ही अप्लाई किया कि नहीं किया? वेदर कंप्लायंस ऑफ, यहाँ पे 40 to 62 दोनों आएगा, 40 to 62 has been done and amounts have been utilized for the purpose for which they were raised. If not, provide details thereof. With this अपने बच्चों 10 क्लॉज कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको 10 क्लॉज एक बार वापस रिकैप करा देता हूं। क्लॉज 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्लॉज 2 इन्वेंट्री, क्लॉज 3 याद है ना लोन्स दैट वर गिवन, ठीक है। क्लॉज 4 दैट वाज बच्चों सेक्शन 190 196। क्लॉज 5 इज डिपॉजिट्स, लॉ का चैप्टर 5 आल्सो इज डिपॉजिट्स, क्लॉज 5 डिपॉजिट्स। क्लॉज 6 वाज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्लॉज 7 बच्चों इट इज योर अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक। क्लॉज 8 वाज आप इनकम खा गए, ठीक है, इनकम खा गए अनडिस्क्लोज इनकम। क्लॉज नंबर 9 वाज योर loans taken but not repaid। clause number 10 is IPO FPO का पर्पस यूटिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। चलो लेट्स गो टू clause 11 नाउ। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 11 टॉक्स अबाउट फ्रॉड रिपोर्टिंग, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने किया है, कंपनी के एम्प्लॉयज ने किया है, और ऑन द कंपनी somebody else has basically defrauded the company has been noticed or report during the year, if yes nature and amount बताना है, बराबर ना। अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग द ईयर दिखा कि कोई भी फ्रॉड वहां पे हुआ है तो इनका उसकी डिटेल्स उसको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर इट वाज इफ यस देन द नेचर नोटिस्ड और रिपोर्टेड, मतलब क्या, लेट्स सपोज कंपनी सेक्रेटरी ने कोई फ्रॉड का रिपोर्ट किया था तो उसकी सारी डिटेल अपने वहां बतानी है। अपने को कोई भी फ्रॉड दिखा होते हुए तो अपन वहां पे बताएंगे। 143.12 बच्चों अपने को पता है व्हाट डज इट मीन, इट मींस रिपोर्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर ना। इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज मिनिमम 1 crore विल गो एंड रिपोर्ट इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो इन फॉर्म 884। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर एज एन ऑडिटर मैंने कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143.12, ठीक है, हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर्स इन फॉर्म 884 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल 13। एंड लास्ट विसल ब्लोअर मतलब चुगलीखोर,
ठीक है, अगर कोई विसल ब्लोअर ने कोई भी कंप्लेंट दी थी तो क्या ऑडिटर ने उस कंप्लेंट को तवज्जो दी कि नहीं दी। Whether the auditor has considered whistleblower complaints when he received during the year by the company। चलो आगे बढ़ते बच्चों। नाउ वी आर इन क्लॉज नंबर 12 दैट टॉक्स अबाउट निधि कंपनी। ओके, क्लॉज नंबर 12 कैसे याद रखना बच्चों? क्लॉज नंबर 12 याद रखना, रेशियो याद रखना आपको। क्लॉज नंबर 12 दैट इज रेशियो याद रखना है 1:20 का। ठीक है, क्लॉज नंबर 12 में आपको रेशियो याद रखना बच्चों 1:20 का। वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विथ नेट ओन फंड्स, ठीक है, टू डिपॉजिट्स इन द रेशियो 1:20 टू मीट आउट द लाइबिलिटी। क्या बोला मैंने? वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विथ नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स इन द रेशियो 1:20। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स। मतलब क्या, उन्होंने बेसिकली 10% अपनी जितनी भी एफडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट जो है, उनको बेसिकली अनइनकम्बर्ड रखा है, कोई भी लोन वोन नहीं लिया उनके अगेंस्ट, बराबर ना। एंड लास्ट, वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जिन लोगों ने भी पैसे दिए, डिपॉजिट रखा है निधि कंपनी में, वो रिपे करने में कोई तो दिक्कत आज तक निधि कंपनी को हुई है तो बताना है बच्चों। देखो, अगर आपका कंपनी निधि कंपनी नहीं है तो आपको सिंपली एक लाइन लिखनी है, दैट सिंस माय क्लाइंट कंपनी इज नॉट अ निधि कंपनी, देयरफॉर दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपल। क्लॉज 13 की बात करो, इट टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी टर्म। बच्चों आपको पता है हर कंपनी को अपने जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं और उनका जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो दोनों चीजें नोट्स में डिस्क्लोज करनी है। तो अपने को सिंपली बताना है क्या मेरे क्लाइंट कंपनी ने डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। Whether all transactions with related parties are in compliance with 170 and 188 and whether details have been disclosed in the financials, बराबर ना, as per your accounting standard। नेक्स्ट बच्चों आने वाला है क्लॉज नंबर 14 दैट इज इंटरनल ऑडिट सिस्टम। अभी सारे क्लॉजेस छोटे छोटे वाले ही हैं, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है? सिंपल याद रखना, 14th फ्लोर पे इंटरनल ऑडिट सिस्टम कहां था बच्चों? इंटरनल ऑडिट सिस्टम कौन से फ्लोर पे था बच्चों? इट वाज ऑन द इंटरनल डिपार्टमेंट। कौन सिस्टम बोल दो, डिपार्टमेंट बोल दो, कौन से फ्लोर पे था? ऑन द 14th फ्लोर। याद रखना इंटरनल डिपार्टमेंट कौन से फ्लोर पे था? 14th फ्लोर पे, ठीक है। हाँ बच्चों, whether the company whether the company has an internal audit department commensurate with the size and nature of the business। इसका मतलब क्या बच्चों कि जहां बेसिकली आज जो इनके पास एक इंटरनल डिपार्टमेंट है, क्या वो इज इट बेसिकली कॉम्पिटेंट इनफ टू लुक आफ्टर द एंटायर बिजनेस। एंड दूसरा, क्या इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट को एक्सटर्नल ऑडिटर ने तवज्जो दी कि नहीं दी, हैज ही कंसीडर्ड दोस रिपोर्ट्स और नॉट। नेक्स्ट वी हैव नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, जहां पे बेसिकली कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ द कंपनी इज टेकिंग ओवर डायरेक्टर्स लैंड एंड गिविंग सम अदर लैंड इन एज अ ट्रांजैक्शन बार्टर, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। Where the company enter into non-cash transaction, then provision the 192 have to be complied with, which state that you have to take a special resolution from the shareholders। shareholders से स्पेशल करना पड़ता है, उसके बाद ही you can enter into non-cash transactions, ठीक है, with directors, ठीक है। एंड डायरेक्टर्स एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, फोकस करना ध्यान से, ठीक है। क्या पॉइंट बोलना चाहता हूं मैं? एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दैट देयर इज अ कंपनी जो डायरेक्टर के एक जमीन ले रही है, ठीक है, और उसको दूसरी जमीन एज अ बार्टर दे रही है, ठीक है। ऐसे केस में क्लियरली क्लॉज नंबर 15 विल अप्लाई, बट along with that remember clause number 13 will also apply because it is a related party transaction। तो that is a small catch that you need to remember कि जब जब क्लॉज 15 आएगा तब क्लॉज नंबर 13 भी एक साथ में ट्रिगर होगा, ठीक है बच्चों। लेट अस सी आउट हियर क्लॉज नंबर 10, 11, 12 एंड 13। okay, just one second guys।
ओके, लेट्स गो अहेड। हाँ, आगे बढ़ते बच्चों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्लॉज। नाउ द नेक्स्ट क्लॉज इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज 16, दैट इज एनबीएफसी। नाउ इसके अंदर कितने क्वेश्चंस के जवाब देने बच्चों? बहुत सिंपल है। पहले हमें डिस्कस करना है अबाउट एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45I। इसके बारे में, हाय आशु, whether the company is required to be registered under section 45IA of the RBI Act 1934, if so whether registration has been obtained। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखना है बच्चों हमें, कि जहां बेसिकली वी हैव टू चेक whether क्या बेसिकली द एनबीएफसी इज अ प्रिंसिपल, उनका प्रिंसिपल बिजनेस इज ऑफ बेसिकली एडवांसिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स, क्या उनका मेन प्रिंसिपल बिजनेस वही है, ठीक है, आफ्टर फुलफिलिंग द 50-50 टेस्ट। अब सर ये 50-50 टेस्ट क्या है, ये हम लोग डिटेल में समझने वाले एनबीएफसी चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चों। सो वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45I ऑफ द आरबीआई एक्ट, एंड इफ सो वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। पॉइंट नंबर 2 इज दैट वेदर द कंपनी, क्या एक कंपनी ने, क्या मेरे क्लाइंट कंपनी ने बिना वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही एनबीएफसी का काम शुरू कर दिया, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी शुरू कर दी विदाउट दैट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आएगा बच्चों विद रिस्पेक्ट टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, where the company where the company is a core investment company as defined in regulations made by RBI, if so whether it continues to fulfill the criteria of a core investment company। बच्चों core investment company क्या होती है? ऐसी एनबीएफसी होती है जो बेसिकली अपने ही ग्रुप एंटिटी में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, ठीक है। आशु बेटा आई विल अपडेट दैट टू यू इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, 2-3 दिन के अंदर अपडेट, वो वेबसाइट के ऊपर आने वाला है आशु, ठीक है, इट विल बी ऑन द वेबसाइट ओनली इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, इट विल बी अपलोडेड, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर 2-3 डेज, यू विल गेट द क्लैरिटी, ओके बेटा। Whether the company is a core investment company as defined in regulations made by RBI, if so, वो कुछ तो जो टेक्निकल ग्लिच चल रहा था उसके चक्कर में वो थोड़ा पेंडिंग है, ठीक है, जस्ट वेट, मैंने आपको बोला था ना इस वीकेंड तक वेट करना पड़ेगा बेटा उसके लिए। Whether it continues to fulfill the criteria, and if so, in case the company is an exempted or unregistered corner. Ashu, I think so there are two cases, ठीक है, one is without the batch and one is with the batch, one is with the books, one is without the books। आपने कौन सा वाला लिया था? आपको मिला था क्या ऑप्शन वेबसाइट के ऊपर? Did you get the option on the website? If I'm not wrong, 99.9%, okay, then in that case 99 it is including the books, ठीक है। सो डोंट वरी, जैसे वो बुक्स का जब ये जो क्लिच चल रहा था वो क्लोज हो जाएगा उसके बाद इट विल बी डिलीवर्ड, ठीक है आशु। Whether it continues to fulfill such criteria, whether the group has more than one CIC as part of the group, if yes, indicate the number of CICs। ये क्या पॉइंट है बच्चों, ध्यान सुनना, ओके। आपका और एक बात याद रखना आशु, कल सुबह की वाली जो क्लास है, टुमारो मॉर्निंग क्लास इज नॉट देयर, इट इज देयर ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है। कल सैटरडे की मॉर्निंग की जो क्लास है वो संडे को है, इतना याद रखना, ठीक है। मैं लाइव हो अभी इसके लिए आपको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओनली यूजुअली इट इज गोइंग टू बी मंडे टू सैटरडे, but in that case for this Saturday it is getting shifted to Sunday, okay। Where the group has more than one core investment company as part of the group, if yes, indicate the number of core investment company which are part of the group, ठीक है बच्चों। क्या तो core investment company वाइज 3 क्वेश्चन है। पहला, whether your client company is a core investment company, if does it fulfill the definition, whether it is an unregistered or exempted। कुछ core investment companies जो बच्चों जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो therefore in that case, in that situation the auditor has to say whether it is an exempted core investment company। and third question, if your group has more than one core investment company, कितने, how many core investment company are there, वो ऑडिटर को बताना है। क्लॉज 17, 17 पे खतरा किसका बच्चों? कैश लॉस का। याद कैसे रखना है? 17 पे खतरा किसका है बच्चों? कैश लॉस का। whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year, if so state the amount of cash loss, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे क्या रखना, अभी ध्यान सुना, हाउ विल यू रिमेंबर द नेक्स्ट 3-4 क्लॉजेस। 17 पे खतरा था कैश लॉस का, जैसे कैश लॉस हुआ ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, कंपनी का गोइंग कंसर्न चला गया, अनसर्टेनिटी आ गई ऑन गोइंग कंसर्न, हम लोग CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कर नहीं पाए, एंड लास्ट इज क्लॉज नंबर 21 इज CFS, बराबर ना। क्लॉज 20 जो मैंने आपको पहले भी बताया था,
ठीक है, चलो। सो 17, 18, 19, 20 लाइन से याद रखना है। क्लॉज नंबर 17 इज व्हाट, योर कैश लॉसेस, 17 पे खतरा कैश लॉस का। फिर बच्चों ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जहां बेसिकली गोइंग कंसर्न चला गया। क्लॉज नंबर 20 इज व्हाट योर, जहां पे कोई सीएसआर कर नहीं पाए। ठीक है बच्चों, अब क्लॉज नंबर 18 में ऑडिटर को रेजिग्नेशन में क्या बोलना है, पे अटेंशन। जो ऑडिटर ये कारो बना रहा है, ठीक है, लेट्स से ही वाज द ऑडिटर हु वाज अपॉइंटेड आफ्टर कैजुअल वैकेंसी। लेट्स मतलब क्या, जो पुराना ऑडिटर था, इस साल का जो ऑडिटर था वो चला गया था छोड़ के, ठीक है, नाउ यू आर द न्यू ऑडिटर। वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इफ सो वेदर ऑडिटर हैज टेकन इनटू कंसीडरेशन इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर, एज सिंपल एज दैट। Whether there has been any resignation of auditor during the year, if so, whether the auditor has taken into consideration issues, objections or concerns raised by outgoing auditor, as simple as that। तो भाई आपको मैंने आपको पहले ही डे 1 पे बताया था, याद है ना, कि जब जब नया ऑडिटर आ रहा है उसको पुराने ऑडिटर से क्या लेना बच्चों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, राइट। तो क्या आपके क्लाइंट ऑडिटर ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया, क्या मतलब मैंने, मुझे खुद के बारे में बताना है कि क्या मैंने पुराने ऑडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, क्लॉज, और याद रखना यहाँ पे ये वाला कब रहे, वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, साल भर के दौरान। करंट ईयर की बात नहीं, करंट ईयर मतलब अगर आप ही पिछले साल के ऑडिटर थे, ठीक है, ये साल में आप ऑडिटर कर रहे हो, तो इन द केस फिर ये क्लॉज नंबर 18 अप्लाई नहीं होगा। ये क्लॉज नंबर 18 तभी अप्लाई होने वाला है जब जिस साल का आप ऑडिटर कर रहे थे उस साल में कोई दूसरा ऑडिटर था, वो रिजाइन कर दिया, उसकी जगह पे आप आ गए, ठीक है, आप आ गए, तो इन द केस क्या आपने जो रिजाइन कर दिया उससे आपने अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया। नेक्स्ट, क्लॉज नंबर 19 टॉक्स अबाउट व्हाट बच्चों, मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। आशु कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे पूछ लेना यहाँ पे चैट में, ठीक है। मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न बच्चों बहुत सिंपल है। ऑडिटर के हिसाब से कंपनी का बिजनेस अगले 12 महीने नेक्स्ट 12 मंथ्स चलेगा कि नहीं चलेगा, ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब डेटर से पैसा कब आने वाला है, लाइबिलिटीज को हमें कब पे करना है, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन अकम्पनिंग द फाइनेंशियल्स, ऑडिटर का नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द मैनेजमेंट का प्लान्स। क्या बोला बच्चों मैंने, ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइज फाइनेंशियल एसेट्स, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट प्लान्स, whether the auditor is of the opinion that no uncertainty exists on the date of report and that the company is capable of meeting liabilities existing on the balance sheet date from 1 year, मतलब क्या कंपनी अगले 1 साल की लाइबिलिटीज पे कर सकती है। क्लॉज 20 पे चलते बच्चों, सेकंड लास्ट क्लॉज है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है, ध्यान सुनना क्या देख रहा हूं मैं, बहुत सिंपल क्लॉज है सीएसआर वाला। क्या बताना है आपको, ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स से कि जहां पे आपका जो क्लाइंट है उनके ऊपर सीएसआर अप्लाई हो रहा है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी अप्लाई हो रहा है, ऐसे केस में अपने को बताना है वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब बच्चों 1 साल वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, जो 1 साल में खत्म होने वाला था। ऐसे प्रोजेक्ट में सपोज करो आपका सीएसआर आपको करना था 2 करोड़ का, आपने किया 1.5 करोड़ का, ठीक है, तो शॉर्टफॉल कितने का आ गया बच्चों, 50 लाख का शॉर्टफॉल है। तो देयरफॉर आपको 1 साल का समय दिया था, बराबर ना, कि 2 करोड़ का आप बेसिकली सीएसआर कर सकते हो, लेकिन आपने कितने का किया, 1.5 करोड़ का, एंड आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग भी नहीं है, ठीक है, मल्टीपल ईयर्स नहीं है, इट इज सिंगल ईयर प्रोजेक्ट, बराबर ना, दिस इज सिंगल ईयर प्रोजेक्ट था। जब ये सिंगल ईयर प्रोजेक्ट है बच्चों, जब ये सिंगल ईयर प्रोजेक्ट है, तो ऐसे केस में करना क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपको हमने पूरा 1 साल दिया, वो 2 करोड़ खर्चा करने के लिए, आपने 1.5 करोड़ दिया, 50 करोड़ लाख बच गया। तो ऐसे केस में आप क्या करो, वो जो 50 लाख बच गया वो आप हमारे फंड में डाल दो, गवर्नमेंट के फंड में, विच इज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7। गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पे फंड रखे, क्लीन गंगा फंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंड रखे हैं, वो पूरा फंड में बेसिकली आप ऐसे हम सीएसआर करेंगे, सिंपल, एंड इट इज लॉजिकल आल्सो, दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी एंड यू मिस्ड इट। Whether the company has transferred unspent amount of 50 lakhs in our example to a fund specified in schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of the financial year, साल खत्म होने के 6 महीने के बाद आपने वो पैसा ट्रांसफर किया कि नहीं किया। दूसरा केस बच्चों, अगर मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, क्या बच्चों, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with provisions of subsection 6 of 135,
मतलब कि बच्चों वेदर एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है बच्चों, ठीक है, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का जो पैसा है अगर आपका अनस्पेंट रहेगा तो आपको अगले साल में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए सेक्शन 135 क्या बोलता है कि वो पैसा आप आपके खाते में नहीं रखोगे, यू ओपन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज अनस्पेंट शेयर अकाउंट, वहां पे भेज दो, ठीक है, यू कैन यूटिलाइज दैट अनस्पेंट अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 3 years। ओके, एंड लास्ट क्लॉज क्या है बच्चों, क्लॉज नंबर 21, दैट इज टॉक्स अबाउट एडवर्स रिमार्क इन द कारो रिपोर्ट ऑफ सब्सिडरीज। ठीक है, ये क्या बच्चों, पे अटेंशन, ध्यान सुनना। Whether there has been any qualification or adverse remark by respective auditor in the Caro report of companies included in CFS. If yes, indicate detail of the company and the para number of the Caro report and the qualification for the qualifying adverse remark. मतलब क्या, सिंपल, मैं इसको एग्जांपल से दिखाता हूं आपको, ये देख लीजिए बच्चों। यस, ये देख लो बच्चों, क्लॉज 21, बराबर ना। लुक हियर, क्लियरली देना है अपने को, क्या लिखना है भाई, इन अवर ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, following companies incorporated in India are and included in CFS have unfavorable remarks। बराबर ना, मतलब जितनी भी कंपनीज हमारे CFS के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, उसके अंदर कहां कहां पे बेसिकली नेगेटिव रिमार्क्स दिए गए, ये देख सकते हो आप लोग बच्चों। लुक एट दिस, कंपनीज कौन सी इंक्लूड है CFS के अंदर, देखो, टाटा मोटर्स लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है वो तो इंक्लूडेड ही है, तो वहां पे आप देख सकते हो बच्चों क्लियरली क्लॉज नंबर 3C 3D 9D, ठीक है, इन एरियाज में बच्चों क्या है, अपना अनफेवरेबल या क्वालिफाइड एडवर्स रिमार्क है, बराबर ना। देख लो, टाटा मोटर्स बॉडी सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये इनकी सब्सिडरी है, तो उनके सब्सिडरी में कहां कहां पे कौन से क्लॉज में ऑडिटर ने नेगेटिव रिमार्क दिया, यहाँ पे इन क्लॉज में, तो क्लियरली देख सकते हो स्टेप डाउन सब्सिडरी, एसोसिएट, स्टेप डाउन सब्सिडरी, सब्सिडरी, जितनी भी कंपनीज बेसिकली इंक्लूड की गई हैं सीएफएस के अंदर, वहां पे जहां जहां बच्चों नेगेटिव एडवर्स रिमार्क है उसके अपने को रेफरेंसेस यहां देने हैं, ठीक है। तो एक खास बात सुन देखने लायक क्या थी, ये वाली, पेरेंट कंपनी के खुद के जहां जहां बेसिकली बच्चों क्या है उनका जो एसएफएस था, ठीक है, ये कौन सा था, पेरेंट कंपनी का एसएफएस है, ये सारे एसएफएस के क्लॉज नंबर्स हैं, एसएफएस के ऑडिट रिपोर्ट के पीछे जो कारो लगता है उनके क्लॉज नंबर्स है, समझे, ये सारे के सारे, गॉट इट। सो देयरफॉर ये पेरेंट कंपनी के एसएफएस भी दैट आल्सो इज अ पार्ट ना, जो अपना सीएफएस है, सीएफएस इज व्हाट, सीएफएस इज अपना पेरेंट कंपनी का एसएफएस प्लस सब्सिडरी के एसएफएस, तो पेरेंट कंपनी भी तो सीएफएस के अंदर इंक्लूड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना कि पेरेंट कंपनी का जो एसएफएस था उसके कारों के अंदर के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी क्लॉज नंबर 21 में आएंगे इन द सीएफएस। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके अच्छा, विद दिस अपने कारो के सारे क्लॉज खत्म होते हैं, यहाँ पे वी आर थ्रू विथ ऑल द क्लॉजेज ऑफ कारो, ठीक है। एक बार मैं आपके लिए सारे के सारे क्लॉजेज जो है बच्चों आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। Clause 1 was property, plant, equipment. Clause 2 was inventory. Clause 3 was loans given. Clause 4 was your 185 186 का limit.
क्लॉज 5 वॉज योर चैप्टर 5 डिपॉजिट्स, बराबर ना. क्लॉज 6 वॉज योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. क्लॉज 7 वॉज स्टैट्यूटरी ड्यूज, बराबर ना, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड. फिर बच्चा पार्टी क्लॉज 8, याद है आप इनकम खा गए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम. क्लॉज 9 was loan taken and not repaid, बराबर ना, borrowing. Clause 10 was IPO, FPO 42, 62, याद है. Clause 11 क्या था बच्चों? It was fraud, बराबर ना. Clause 11 was fraud. Clause 12 was निधि कंपनी. Clause 13 was your related party, तेरा रिश्तेदार. Clause 14 was your 14 पे क्या था बच्चों? इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट. Clause 15 was non-cash transaction. Clause 16 was your NBFC. Clause 17 क्या था बच्चों? It was your cash loss, याद है ना, 17 पे खतरा कैश लॉस का. फिर बच्चों उसके बाद क्या था तुम्हारा? रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. उसके बाद बच्चों क्लॉज 19 was गोइंग कंसर्न. फिर उसके बाद क्लॉज नंबर 20 was CSR and then is CFS, बराबर है क्लॉज 21. ओके डन बच्चों. तो ये सारे के सारे क्लॉजेस का मैंने आपको चार्ट भी बना के दे दिया है, ठीक है. प्लीज एंश्योर करना दैट यू आर कॉपिंग द सेम थिंग इन योर नोट्स एज वेल. ओके नाउ बच्चों व्हेन इट कम्स टू सेक्शन नंबर 143, okay, now remember 143 also has so many questions that the auditor has to answer. Simple as that. So these are very very similar questions. Let's cover the section 143 as well, ठीक है बच्चों. यस बच्चों सेक्शन 143 के अंदर ध्यान सुनना भी. सेक्शन 143 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी फर्स्ट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जिनको हम लोग बुलाते हैं प्रोप्राइटी मैटर इंक्वायरी. मतलब क्या आपने बेसिक आपके क्लाइंट ने कोई भी वेस्टफुल खर्चे किए, वैसा वाला. ध्यान से देखना. पहला पॉइंट आएगा बच्चों अबाउट एडवांसेस एंड लोन्स. पहला पॉइंट क्या आएगा? अबाउट एडवांसेस एंड लोन्स. वेदर loans and advances made by the company means given by the company have been properly secured and whether terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या पूछना है? पहला क्वेश्चन पूछना है बच्चों, याद रखना मैंने सारे HTR आपको दिए हुए हैं. A फॉर एडवांसेस एंड लोन्स, B फॉर बुक एंट्रीज, C फॉर कॉस्ट के नीचे बेचा, D फॉर डिपॉजिट्स, E फॉर एक्सपेंस ऑफ पर्सनल नेचर, F फॉर फेक कैश. नाउ दिस इज देयर इन योर स्टडी मैट, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है. आइडियली सीए फाइनल लेवल पे यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस है. तो देयरफॉर यू जस्ट नीड टू नो इट वंस, ठीक है. मैंने आपको टेक्निक भी बता दी है, अगर आप लर्न कर सकते हो, ठीक है. मल्टीपल रिविजन इतना जो एग्जाम में आने के चांसेस कम है. कारो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कम इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ठीक है बच्चों. ओके क्या बोला मैंने? whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured and whether terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company. Question number 2, whether transactions represented by book entries are prejudicial to the interest of the company. मतलब क्या जो ट्रांजैक्शन बच्चों आज बेसिकली बुक एंट्री वाइज किए गए हैं, ओनली बुक एंट्रीज, आर दे हार्मफुल टू द कंपनी. नेक्स्ट कॉस्ट के नीचे बेचा, क्या आपके क्लाइंट कंपनी ने कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स जो है बेसिकली सिक्योरिटीज जो थे बेसिकली कॉस्ट के नीचे बेचा, ठीक है. इन इफ दिस देन व्हाई डिड दे डू इट, व्हाई डिड दे सेल इट एट अ लॉस. whether any shares or securities held by company are sold at a price less than purchase price. हाँ याद रखना दिस विल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी. तो ये क्वेश्चन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज को नहीं पूछना है. कहीं आपने क्लाइंट ने लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट्स तो नहीं शो कर दिया, ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आपको पूछना है. क्या पर्सनल खर्चे, आपको पता है पर्सनल एक्सपेंसेस शुड नेवर गो टू द पर्सनल एक्सपेंसेस शुड नेवर, याद रखना पर्सनल एक्सपेंसेस शुड नेवर गो वेयर, दे शुड नेवर गो टू योर पीएनएल अकाउंट, बराबर ना. तो आपके क्लाइंट ने कहीं कोई पर्सनल खर्चे पीएनएल में रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट तो नहीं कर दिए. एंड एफ फॉर फेक कैश, ठीक है. फेक कैश का मतलब क्या है? वेदर योर क्लाइंट कंपनी हैज इशूड एनी शेयर्स फॉर कैश एंड इफ यस देन इन दैट केस क्या उनको कैश एक्चुअल में मिली. अगर कैश नहीं मिली देन इन दैट केस इज द कैश पोजीशन करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग.
where it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment. If no cash has actually been received, the position as stated in the accounts books is correct, regular and not misleading. As simple as that. ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल है. क्या आपका क्लाइंट कंपनी बोल रहा है उन्होंने शेयर इशू किए फॉर कैश, क्या उनको कैश एक्चुअल में मिली, एंड अगर कैश नहीं मिली है देन इन दैट केस इज द कैश पोजीशन करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग. अगर ऑडिटर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, मींस व्हेन ही इंक्वायर्ड उसको पॉजिटिव आंसर मिल गया, तो ही कैन इग्नोर दैट. ठीक है, अगर नेगेटिव या एडवर्स कमेंट्स है तो इन दैट केस ही हैज टू मेंशन दैट इन द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है सर, इसका एग्जांपल दो ना. एग्जांपल देता हूं. इमेजिन करो अगर ऑडिटर को समझ में आ गया कि कोई भी पर्सनल खर्चे पीएनएल में डेबिट नहीं किए गए, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, नो नीड टू रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल्स इन द ऑडिट रिपोर्ट. लेकिन बच्चों अगर पर्सनल खर्चे ऑडिटर को दिख रहा है कि हैव बीन चार्ज टू पीएनएल डेबिट, देन इन दैट केस ही हैज टू रिपोर्ट इट इन द ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज़ इट्स अ नेगेटिव और एडवर्स रिमार्क. चलो नाउ नेक्स्ट इज 143 सबसेक्शन 3. ठीक है बच्चों, आपको पता है मैंने आपको ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था. पहले अपनी मेन रिपोर्ट आती है, फिर बच्चों 143 के क्वेश्चंस आते हैं जिनके जवाब देने पड़ते हैं ABCD, एंड उसके बाद आती है कारो की रिपोर्ट. तो हमने कारो तो कर लिया, अभी 143 के रिपोर्टिंग वाले क्वेश्चंस. अगेन ऑल ऑफ दीज आल्सो स्टार्ट विद वेदर, बराबर. दीज आर क्वेश्चंस दैट द ऑडिटर हैज टू आंसर. ठीक है, HTR आपके सामने है. A फॉर ऑल इंफॉर्मेशन, B फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, C फॉर कॉल द ब्रांच ऑडिटर, D फॉर डेल्ट विथ, E for financial statements is equal to accounting standard, F for financial transactions, G for gate के बाहर auditor, H for hopeless accounts, I for IFC internal financial controls. ठीक है बच्चों, चलो पहला सवाल है, क्या ऑडिटर ने क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछे एंड क्या क्लाइंट से उनको सारे जवाब मिले. सिंपल उसका ऑडिटर को जवाब देना है. वेदर he has sought and obtained all information and explanation which to the best of knowledge and belief were necessary for the purpose of audit. If not, details and the effect बताना है. ठीक है. Point number 2, books of accounts, whether in his opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the company so far as appears from the examination of his books. क्या बेसिकली बच्चों जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे क्लाइंट ने मेंटेन किए, क्या बेसिकली उन्होंने सारे प्रॉपरली मेंटेन किए कि नहीं किए. Okay. Next, whether branch auditor has sent his report to principal auditor, principal auditor, and the manner in which principal auditor dealt with in his preparing his report. Whether branch auditor has sent his report to principal auditor and the manner in which principal has dealt with in preparing his report. मतलब क्या ब्रांच ऑडिटर ने अपनी सारी रिपोर्ट्स हेड ऑफिस के ऑडिटर को दी कि नहीं दी, और हेड ऑफिस के ऑडिटर ने उसको तवज्जो दी कि नहीं दी. नेक्स्ट, डी से आने वाला डेल्ट विद. बच्चों मेरी ऑडिट रिपोर्ट में आई डील विद द फाइनेंशियल्स, so I need to answer the financials that I've that dealt with in my report are they in agreement with the books of accounts or not. बराबर ना, वो तो होने ही चाहिए because financial बनते ही कहाँ से, books of accounts से. Whether the company's balance sheet and P&L that I have dealt with in my audit report are they in agreement with the books of accounts or no. Next बच्चों, financial is equal to accounting, whether in his opinion financial statements comply with the accounting standards. Next, F for financial transaction, observations or comments of the auditor on financial transaction or matters which have any adverse effect on functioning of the company. मतलब कि बच्चों क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन ऑडिटर को दिखा which has any adverse effect on the functioning of the company, then in that case he has to report it here. G for गेट के बाहर डायरेक्टर, कभी अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया अंडर 164(2) तो उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे देनी है. H for hopeless accounting, whether any qualification, reservation, adverse remark related maintenance of accounts has been or the matters connected therewith. ठीक है, कोई अगर मेरा रिमार्क है with respect to any remarks that I have with respect to the accounting, I need to post it here. I से आने वाला बच्चों IFC इंटरनल, मैंने आपको बताया था ये एक सेपरेट रिपोर्ट जाती है. This is a separate report that I have to give. I have to provide my opinion on the internal financial controls, that is इनके financial transactions के controls कैसे हैं. Whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial in place and operating such controls. However, it may be noted that reporting requirement on adequacy of IFC shall not be applicable to a private company. तो याद रखना ये separate report कौन से clients पे apply नहीं होती बच्चों. It does not apply to one person company, does not apply to small company, it does not apply to company having a turnover of less than 50 crores and borrowing less than 25 crores.
ठीक है, तो याद रखना कौन सी प्राइवेट कंपनी जो एक 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, एंड ऐसी कंपनी विच हैज अ टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एंड बोरोइंग लेस देन 25 करोड़। जे के अंदर आने वाले अदर मैटर्स, दीज आर सम एक्स्ट्रा मैटर्स बच्चों, अदर मैटर्स जहां पे ऑडिटर को आंसर देना है। ठीक है, तो याद रखना नाउ वी आर गोइंग टू सब क्लॉजेस, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जे, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, ऐसे सब क्लॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जे का सब क्लॉज ए क्या बोलता है, क्या कंपनी ने सारा लिटिगेशन डिस्क्लोज किया है, जितने भी कोर्ट केसेस फाइल्ड है क्या कंपनी ने सारे डिस्क्लोज किए कि नहीं किए। बी बोलता है इफ द कंपनी हैज मेड एनी प्रोविजन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर एनी मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या बेसिकली, क्या किसी भी क्लाइंट कंपनी, क्या किसी भी मेरा जो क्लाइंट कंपनी है उसने बेसिकली अगर किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो उसके रिलेटेड जितना प्रोविजन बना था क्या उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया, उसका जवाब ऑडिटर को देना है। नेक्स्ट, क्या कंपनी ने डिले कर दिया टू ट्रांसफर मनी टू आईपीएफ। आपको पता है कंपनी को अगर सपोज करो डिविडेंड देना था लेकिन शेयर होल्डर नहीं मिल रहा है, तो कंपनी विल कीप दैट मनी इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 years। आफ्टर 7 years दे हैव टू मूव इट टू आईपीएफ, गवर्नमेंट के खाते में भेजना पड़ता है। तो क्या कंपनी ने डिले कर दिया भेजने में, यस और नो। डी के अंदर बच्चों ऑर्डर को यह जवाब देना है कि क्या कंपनी ने आपको बोला है कि जितना अमाउंट बुक्स में है उतने ही हमने लोन दिए हैं, उसके ओवर एंड अबाउ ऑफ द बुक्स हमने कोई भी लोन नहीं दिया है, और ना तो हमारा कोई भी अरेंजमेंट है कि हमने लोन ए को दिया, ए लोन बी को देगा, मतलब द मनी विल नॉट बी पास्ड ऑन, ऐसा भी हमारा कोई अग्रीमेंट नहीं है। Whether management has represented that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in notes to accounts। ठीक है, other than as disclosed in notes to accounts, no funds have been advanced or loaned or invested by company to any person with the understanding whether record in writing or otherwise that the intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other persons, provide any guarantee, security or like on behalf of ultimate beneficiary। Okay, so next D2, whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in notes to accounts no funds have been received by company from any person with the understanding with the record in writing otherwise। मतलब ये क्या बच्चों, जैसे पेमेंट मनी देने की बात है वैसे रिसीट की बात है। क्या कंपनी ने आपको बोला है कि हम जितना लोन लिया है वो सारा लोन हमने बुक्स में डिस्क्लोज किया है, उसके ओवर एंड अबाउ नो फंड्स हैव बीन रिसीव्ड, हमें उसके ओवर एंड अबाउ कोई पैसा नहीं मिला है, और कोई पैसा ऐसा अग्रीमेंट में भी नहीं मिला कि पैसा आप हमें दो हम किसी और को आगे टिका देंगे, ऐसा भी कोई हमारा अग्रीमेंट नहीं है। एंड क्या ऑडिटर को लग रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऊपर के दो चीजें जो क्लाइंट ने बताई है उसके अंदर ऑडिटर को कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं लग रही। Based on procedure performed, auditor has considered reasonable and appropriate circumstances. Nothing has come notice that caused him to believe that representations contain material misstatement। लास्ट के दो सवाल कौन से बच्चों, क्या डिविडेंड क्लाइंट ने जो डिक्लेयर किया वाज इट इन अकॉर्डेंस विद 123। ठीक है, 123 के अंदर पूरा प्रोसीजर है डिविडेंड डिक्लेरेशन का, क्या क्लाइंट कंपनी ने वो प्रोसीजर फॉलो किया। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, वेदर कंपनी हैज यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपके क्लाइंट कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया तो क्या उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर था। ठीक है, अगर वो ऑडिटर का फीचर था क्या वो साल भर ऑपरेट हो रहा था, एंड उसके साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए है, क्या टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, एंड वो ऑडिट ट्रेल प्रिजर्व करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मतलब क्या, जैसे कंपनी को फाइनेंशियल प्रिजर्व करने पड़ते हैं वैसे ऑडिटर को भी जो ये ऑडिट ट्रेल है उसको प्रिजर्व करके क्या ऑडिट ट्रेल इज प्रिजर्व बाय कंपनी फॉर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। आपको पता है फाइनेंशियल्स को 8 साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है, तो सिमिलरली ऑडिट ट्रेल को भी 8 साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा बाय द कंपनी। गॉट बच्चों, सो इन शॉर्ट वी आर थ्रू विथ सेक्शन 143 एज वेल। ठीक है, हम लोगों ने 140 सेक्शन 1 भी कर लिया बच्चों, एंड वी आर थ्रू विथ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एज वेल। ठीक है बच्चों, एक सबसेक्शन और एक्स्ट्रा जो आपको जानना चाहिए इज विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड रिपोर्टिंग। ठीक है, 143-12 वाला जो सेक्शन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉड रिपोर्टिंग का। ठीक है, याद रखना मेरा बेसिक पॉइंट तो भूलना मत कि ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है फ्रॉड ढूंढने की। इट इज नॉट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड फ्रॉड। Just 1 second, guys. There's somebody at the door. Hold on. हाँ बच्चों, look here. So we are discussing 143-12. अब
143.12 के अंदर बच्चों क्या ध्यान से याद रखना अपने को, फ्रॉड रिपोर्टिंग, बराबर ना। मैं आपको क्या बताया कि इट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड फ्रॉड, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है फ्रॉड ढूंढने की, लेकिन अगर इफ वी कम अक्रॉस समथिंग सस्पिशियस टू फ्रॉड देन इन दैट केस फिर हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। इफ द अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़ तो वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी, ठीक है, एंड वी हैव टू रिपोर्ट इट विद इन हाउ मच टाइम बच्चों, वी हैव टू रिपोर्ट इट विद इन 2 days, जैसे मालूम पड़ेगा तो विद इन 2 days ऑफ नॉलेज वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द बोर्ड ऑफ ऑडिट कमेटी। एंड क्या रिपोर्ट करना है बच्चों, याद रखना, पैन, पार्टी अमाउंट नेचर, क्या रिपोर्ट करना है, पार्टी अमाउंट नेचर आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, पार्टी अमाउंट एंड नेचर, ठीक है, पार्टी अमाउंट नेचर मतलब किसने किया है, कितने अमाउंट का किया और फ्रॉड कैसे किया, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोज कहाँ करना है, यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कहाँ डिस्क्लोज करना है बच्चों, यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। और डिस्क्लोज करना भी क्या है बच्चों, आपको डिस्क्लोज करना है, वो लोग डिस्क्लोज करने वाले हैं रैन, दैट इज रेमिडियल एक्शन अमाउंट नेचर, क्या उन्होंने एक्शन लिया अगेंस्ट द कल्प्रिट, वो रेमिडियल एक्शन अमाउंट नेचर डिस्क्लोज करेंगे। अगर रेमिडियल एक्शन उन्होंने नहीं लिया देन दे विल डिस्क्लोज पैन, दैट इज पार्टी अमाउंट नेचर, ठीक है बच्चों। सर व्हाट इफ द अमाउंट इज मिनिमम 1 करोड़ और अबव, ठीक है, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, विद इन 2 days आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी को तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर 45 days टू सीक देयर रिप्लाई। अगर बच्चों 45 days के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर देयर रिप्लाई, 45 days में अगर उनका रिप्लाई आ गया देन इन दैट केस बच्चों क्या हो जाएगा, आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होंगे, आपकी रिपोर्ट, उनका रिप्लाई एंड योर कमेंट्स ऑन द रिप्लाई। ये तीनों चीजें 15 days के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो इन अ सील्ड एनवेलप। एक फॉर्म भरना पड़ता है अपने ADD4 और बेसिकली अपनों को बच्चों भेजना पड़ेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनको भेजना पड़ेगा। एंड लास्ट बच्चों ऑब्जर्वेशन इफ यू आर नॉट रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं मिले, ठीक है, अगर बेसिकली रिप्लाई कुछ नहीं आया तो इन दैट केस सिंपली आपकी रिपोर्ट भेज दो और एक नोट डाल दो कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट फॉर विच यू फेल टू रिसीव एनी रिप्लाई, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर दो बच्चों, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देने का है, ठीक है। ओके, आई टोल्ड यू हैव टू डू इट इन फॉर्म 84। ये किसको जाने वाला बच्चों, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन अ सील्ड कवर जाएगा एंड रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट भेजना है एंड प्लस एक ईमेल भी भेजना है। ओके बच्चों, सो विद दैट वी आर थ्रू विद द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। एज यू कैन सी बच्चा पार्टी अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया भाई, हम लोगों ने पूरा कारो कंप्लीट कर लिया है, पूरा सेक्शन 143 भी कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास नहीं, संडे की क्लास में बच्चों हम लोग जो स्टैंडर्ड पेंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे, दैट इज योर 710 720 कंप्लीट करेंगे और बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, दैट विल बी योर डे 4 एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर ऑडिट रिपोर्टिंग चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू गाइज सॉरी शायद ऑडियो कम आया होगा, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है, मजा आया होगा आपको। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इफ एट ऑल यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, एंड आई होप यू गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपको बेसिकली ये क्लासेस एनरोल करनी है देन इन दैट केस आपको यहाँ पे जो लिंक दिख रही है adda247.com, वहाँ पे जाके आप क्लास को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।